I don't want Marcus Rashford as a part of the squad for Manchester United in 2026-2027 season. देखो, I understand that he's a Manchester boy. हमारी ही अकेडमी में पला बड़ा है. He joined Manchester United की academy at the age of 7. Yes, he has some great records यार. He scored on his Europa League का debut. He scored on his Premier League debut where he scored 2 goals against Arsenal. He scored on the debut of the Manchester Derby, Man United versus Manchester City. First match he scored, and he even scored on his England ka debut. Yaar. So there is no doubt on the talent and there is no doubt on the skills. In his over 400 appearances for Manchester United, Marcus Rashford scored over 130 goals, and even in Barcelona he had gotten 14 goals and 14 assists, जो कि अभी वो ला लीगा टाइटल जीत के आया भाई. He even scored in the El Clasico. So there is no doubt on the talent. I 100% agree. But the reason I don't want Marcus Rashford in the squad is attitude, bhai. Sir Alex Ferguson, legendary manager of all time, bhai. He said, and unka quote hai, that if I had to choose between someone who has great talent but was short on grit and desire versus another player who was good but had great determination and drive, I would always prefer the second one. I would prefer the latter, bhai, because his attitude was absolutely right, bhai. ठीक है, तो let me break down as to what happened between Manchester United and Marcus Rashford. उससे you guys can make up your own mind. मैंने बता दिया, मेरे को नहीं चाहिए, but do let me know in the comment section कि आपको क्या लगता है, भाई. So 1 दिसंबर 2024 को मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होता है एवर्टन के साथ, जिसमें मैन यूनाइटेड जीतती है 4-0. उसमें राशफोर्ड ऑल्सो स्कोर्स 2 गोल्स भाई. ठीक है, बट आफ्टर दैट पता लगता है रूबन आमरम को. रूबन आमरम जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन नवंबर 2024, एंड ये दिसंबर की मैच की बात कर रहा हूँ. बट उसके बाद पता लगता है दैट राशफोर्ड was out partying 48 hours before the game, दोस्तों. He was socializing. कुछ reports ये भी थी that he was having alcohol, he was drinking beer, which is against the club's policy कि तुम 48 hours before you need to be in the curfew ताकि आप मैच के टाइम 100% शार्प हो, अलर्ट हो और रेडी हो भाई. ठीक है, सो देर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स. एंड ऑफ कोर्स राशफोर्ड, उसकी टीम ने, सबने ये डिनाई किया that this is not true, but there were some people close to him and some witnesses who saw Marcus Rashford partying. ठीक है, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ दैट रूबन आमरम ने उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स यार. हिम एंड अलेहांड्रो गार्नाचो बोथ वर ड्रॉप्ड यार. ठीक है, रूबन आमरम ने बहुत क्लियरली मैंडेट बता दिया था दैट देर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स इन द क्लब विच आर आउटसाइड द मैच डे परफॉर्मेंस. अगर तुम आउटसाइड वाली चीजें अच्छी रखोगे देन 100% इनसाइड चीजें अच्छी हो ही जाएंगी यार. रूबन आमरम ने बोला था दैट ही इवेल्युएट्स एवरीथिंग while picking up the squad, the way you eat, the way you put your clothes before the game, your training performance, and how you talk and engage with the teammates. And these were the reasons why Marcus Rashford wasn't selected for the next game week यार. तो वो ड्रॉप हो गया. He was not even on the bench. ठीक है, एंड रूबन आमरम ने और भी चीजें बोली जब इंटरव्यू में पूछा कि आपने मार्कस राशफोर्ड को टीम में क्यों नहीं रखा. सो ही सेड दैट द रीजन इज ट्रेनिंग. I will put the goalkeeping coach on before I put a player that doesn't give his maximum every day, भाई. So कुछ लोग बोलेंगे कि भाई रूबन आमरम की क्यों बात कर रहे हो. दिस इज नॉट अबाउट रूबन आमरम भाई. आई बिलीव इन द प्रिंसिपल. व्हाट ही, द प्रिंसिपल इज एब्सोल्युटली राइट. जो वो कह रहा है उसको आप भूल जाओ यार. अगर if a player is not giving his 100% every day, then he has no right to be in the Manchester United squad, is what I believe. ठीक है, तो जब ये ड्रॉप हुआ, now your a player has two choices यार, कि यार अब मैं ड्रॉप हो गया हूं, लेट मी क्लियर माई हेड, लेट मी विन द ट्रस्ट बैक ऑफ द मैनेजर विद परफॉर्मेंस. ये एक रास्ता होता है भाई. और दूसरा रास्ता होता है जो राशफोर्ड ने लिया. ही गेव एन अनसैंक्शनड इंटरव्यू और उसने सीधा सीधा बोल दिया, दिस इज ड्यूरिंग द सीजन, दिस इज मिड दिसंबर. ठीक है, अभी ट्रांसफर विंडो भी खुला नहीं है. And he said, for me personally, I'm ready for a new challenge. And the next steps, when I leave, it's going to be no hard feelings.
I know that the situation is really bad. I am not going to make it worse. By saying this, he made it worse. दोस्तों देखो, मैं ये नहीं ये बोल रहा कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की गलती है ही नहीं इसमें और सिर्फ रैशफोर्ड की गलती है, नहीं भाई, ताली दोनों हाथों से बचती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी कुछ गलती रही होगी एंड रैशफोर्ड ने ये इंटरव्यू देकर भी काफी गलती करी है. सो ही हैड लिटरली गिवन अप ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रस्ट्रेशन में आके जो भी बोल के ही गेव एन इंटरव्यू. पहले तो यार इससे क्या होता है यार, देखो, even if Manchester United wanted to sell Rashford, now the other clubs know कि एक talented player है और अब तो हम उसको सस्ते में ले लेंगे because he doesn't even want to stay at the club. तो आप अपना ही financial अपना ही तुम वो करते हो because it will be hard for Manchester United to sell Rashford at a relatively higher price. या जो उसका price होना चाहिए उस पे हम बेच ही नहीं पाएंगे because the player even doesn't want to stay. He will push a move out. वो तो कहीं पे भी चले जाएगा but Manchester United will be like यार ये तो अच्छा player है, हम 40 मिलियन से कम नहीं मानेंगे. तो इससे नुकसान दोनों का हुआ है. ही शुडंट हैव बीन गिविंग दिस इंटरव्यू. पहले आपने खुद गलती करी, देन उसके बाद यू गेव दिस इंटरव्यू एंड यू डिडंट इवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई, दैट इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज. ऑफ कोर्स ही वाज एक्सक्लूडेड ऑफ द मैच डे स्क्वाड्स. ही ट्रेन्ड सेपरेटली टिल ही गॉट दैट एग्जिट भाई, एंड इवेंचुअली फिर वो जाते हैं एस्टन विला एंड देन ही गोज टू बार्सिलोना. ठीक है, बार्सिलोना में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 14 गोल्स 14 असिस्ट. बट माय प्रॉब्लम इज दैट इवन आफ्टर गेटिंग 14 गोल्स एंड 14 असिस्ट, देन व्हाई नॉट टेक हिम भाई. 25 मिलियन की डील हो रही थी ना. दे वेंट फॉर अ यंगर ऑप्शन एंटनी गॉर्डन एंड बिल्कुल लेना चाहिए भाई. बट अगर इतना ही इंप्रेस किया होता तो ही वुड हैव कम अंडर कंसिडरेशन मार्कस रैशफोर्ड भाई. एंड यहाँ पे he left the club because he doesn't want to be a part of Manchester United. अब वो पूरी जगह घूम रहा है. He is looking at each and every top club. मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो. कोई ले नहीं रहा. So now he is back at Manchester United and now we are saying कि हम इसको integrate कर लेते हैं, which I don't think should be the case दोस्तों. My case is that Manchester United is not a backup option. It is a club we love. एक प्लेयर जिसको जाना ही है बट अगर कुछ मिलेगा नहीं इसलिए मैं यूनाइटेड के लिए खेलूंगा. I would never want a player like that, no matter how much talented. भाई, we are not a bloody backup option दोस्तों. अब कुछ मिल नहीं रहा, अरे कैरी का तो रिलेशनशिप अच्छा है. अरे भाई, तुमने खुद जाना था ना तुम्हारे को. अगर इतना ऐसा ही था तो तुम चुप बैठ जाते और फिर अपना लोन एक कुछ सैंक्शन कर लेते. बट तुम्हारे को भी अपना मुंह खोलना था एक तो ना भाई. रैशफोर्ड इज नॉट सराउंडेड विद गुड पीपल यार. जेन्युइनली बता रहा हूँ, उसका जो भाई है ड्वेन मेनार्ड, जो भी है, ये इसको पता नहीं क्या एडवाइस देते हैं और ये क्या अपने आप को तोप समझते हैं. अब बोल रहे हैं कि कोई क्लब नहीं मिल रहा तो ही हैज अ वेरी रियलिस्टिक चांस टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. फक दैट भाई, गेट द फक आउट ऑफ माय क्लब. Very respectfully, I love him. I know he's a Manchester kid. It's sad for me to say it, bhai. But मेरा opinion, after what he has done for the club, of course, there were seasons where his mind was right and he was making the right decisions. He's not doing it right now. And अभी अगर कोई top club आया तो ले लेंगे भक. I don't believe in that, bhai. So दिस इज वॉट इट इज. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मैनेजर के बीच में फ्रिक्शन हो जाती होगी, प्लेयर और मैनेजर की नहीं बनती होगी, दिस हैपेंड विद एरिक टेन हैग ऑल्सो विद मार्कस रैशफोर्ड, जिसमें एरिक टेन हैग ने बोला था दैट रैशफोर्ड नीड्स टू सेट हिज लाइफ राइट, हिज ट्रेनिंग एटीट्यूड राइट एंड हिज मैच एटीट्यूड राइट यार. एंड ऑफ कोर्स रूबन आमोरिम ने भी बोल रहा था दैट रैशफोर्ड नीड्स टू बी द फर्स्ट वन to wanted to get back into the squad जब वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था भाई. तो यहाँ पे he had given up on the club and I'm sure यार क्लब में भी प्रॉब्लम रही होगी जो उसने ये डिसीजन लिया. बट नाउ अब ब्रेकअप हो चुका है तो अब कोई मिल नहीं रहा तो तुम वापस क्यों आ रहे हो भाई. दैट शुड नॉट बी द केस. आई नो, मैं काफी बार बोल चुका हूँ. एंड ऑफ कोर्स ही हैड ऑफ द फील्ड डिसिप्लिनरी ब्रीचेस विद एरिक टेन हैग, जहाँ पे एक बार डिसिप्लिनरी एक्शन ये था दैट ही वाज बेंच्ड from the game against Wolves for oversleeping and missing a team meeting and calling in sick for training following a publicized 12-hour night out. 12 घंटे बाहर चिल करके आया and then he reported sick for training sessions. देखो, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है तो लगता है कि चलो ठीक है भाई. बट इफ इट हैपेंस एंड वो पैटर्न दिखने लग जाता है, आई एम कंप्लीटली नॉट ओके विद व्हाट शिट दिस इज एंड दैट इज व्हाई आई डोंट वांट मार्कस रैशफोर्ड बैक. भाई, उसने डिसरिस्पेक्ट किया है क्लब को. अब वो सॉरी बोले या जो भी करे, अगर वो अपना एटीट्यूड ठीक नहीं कर सकता है,
आई डोंट वांट हिम। अभी आप बोलोगे कि यार बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर विंडो, आस्क दोस क्वेश्चंस टू आवर बोर्ड, इनियोस मैनेजमेंट को बोलो ना कि तुम क्यों नहीं ला रहे हो वो ट्रांसफर। अभी कैरिक के साथ इक्वेशन अच्छा वापस ले आते हैं, आई एम नॉट ओके विद दैट। ऑफ कोर्स इफ ही कम्स बैक वी विल सी, बट आई डोंट थिंक, देखो अपने आप को वो टर्की भी नहीं भेजना चाह रहा। ही डजंट वांट टू गो टू सऊदी बिकॉज ही स्टिल थिंक्स ही इज एन एलीट प्लेयर। अगर इतना एलीट होता तो कोई ना कोई क्लब आ जाता है यार, एंड आई होप आ जाए, because talent wise it's there but attitude wise is not there. Other few reasons, by of course now we are back in the Champions League, so he'll be one of the most highest paid players in Manchester United. Again उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है भाई ओवर 300,000 पाउंड्स पर वीक, अभी 25% इंक्रीज हो गया बिकॉज चैंपियंस लीग में वापस आ गए हैं, सो वो भी है। एंड इफ ही इज नॉट अ स्टार्टर, अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम बाय द वे इज नॉट कि हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर भी उसको खिला लेंगे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि भाई उसका अगर एटीट्यूड सही नहीं होगा तो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर विल बिकम शिट वंस अगेन भाई, है ना। वो आके क्रिप करेगा, क्रिटिसाइज करेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे ऑल द प्लेयर, तुम्हारे को पता ही है यार ड्रेसिंग रूम में एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इफ ही विल नॉट प्ले एवरी मैच, इफ ही विल जस्ट कम फ्रॉम द बेंच, अपने आप को अब जैसे वो समझता है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है एंड है भी वैसे, बट एटीट्यूड अगर ठीक कर ले तो, बट अगर कल को उसको स्टार्ट नहीं कराए ही विल स्टार्ट क्रिबिंग, ही विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, एंड वो नेगेटिविटी ड्रेसिंग रूम में आ जाएगी, विच आई एम नॉट ओके विद यार। दीज आर माई थॉट्स। आई लव हिम एज अ प्लेयर, नॉट हिज एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली नॉट राइट, जो मैं आपको बोल चुका हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।